میں اب اتنا زیادہ مال دولت اور نعمتیں اور آسائشیں سنبھال نہیں پا رہا، تو اللہ سے کہیں کہ اب میرے اوپر سے یہ تھوڑی سی کم کر دینا۔ اس کو بولو کہ تم شکر ادا کرنا بند کر دو تو میں عنایتیں بند کر دوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پریم ٹیک میڈیا، میں ہوں سلمیٰ عزیز۔ آج جمعۃ المبارک کا بہت ہی بابرکت دن ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھا، اللہ اس پر 10 مرتبہ رحم فرمائے گا۔ تو چلیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں اور آپ ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہم پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جمعۃ المبارک کا وہ بابرکت دن جس میں رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ یوں تو ہر وقت ہی اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں اللہ کی مخلوق پر، لیکن جمعے کا دن خاص ہے، تو جمعے کے دن جو آپ درود شریف پڑھتے ہیں اس کی بڑی خاص فضیلت ہے، اور ہماری دعا ہے کہ جو ہم نے درود شریف پڑھا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اس تحفہ درود کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھجوائے اور وہ قبول بھی ہو جائے۔ اور اچھا، آج جو بات کرنا چاہوں گی وہ ہے شکر کے حوالے سے۔ تو ہم اکثر اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ بہت رحم کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں، کئی چیزیں ایسی ہیں جو ظاہری ہیں، جو ہمیں دکھ رہی ہیں، اور کئی ایسی ہیں جو ہمیں پتہ بھی نہیں ہیں، جو باطن ہیں، جو چھپی ہوئی ہیں ہم سے، لیکن اللہ نے وہ ہمارے لیے جو ہے وہ موجود رکھی ہوئی ہیں اس دنیا میں۔ اور ہمیں پھر اللہ کی عطا کردہ ہر ظاہر و پوشیدہ نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دیکھیں، ہم رات کو جب سو جاتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہمیں صبح آنکھ کھولنا نصیب ہوگا کہ نہیں، سانس لینا نصیب ہوگا کہ نہیں، لیکن ہم جیسے ہی صبح اٹھ جاتے ہیں تو ہمیں ایک دم سے یہ ریئلائز ہوتا ہے، اگین اٹس مارننگ۔ تو اگین اٹس مارننگ کے ساتھ ساتھ ہم اگر اللہ کا شکر ادا کر دیں، اور جس طرح سے جو مسنون دعائیں ہیں کہ جیسے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، تو یہ بڑی پیاری دعا ہے اگر اس چیز کو ہم سمجھیں کہ اگر ہم شکر کرتے، جیسے ہی صبح اٹھتے ہیں اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے کہ اللہ صبح دوبارہ آپ نے ہمیں زندہ کر دیا، ہم اس پہ آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور پھر دیکھتے جائیں کہ باقی تمام وہ نعمتیں، جیسے آپ صبح اٹھے ہیں، آپ کا دل کیا ہے کہ آپ نے شاور لینا ہے، تو آپ نے کہیں سے آپ کو پانی بھر کے نہیں لانا پڑا، بلکہ آپ نے جسٹ نلکا کھولا یا شاور کھولا اور آپ کا پانی آ گیا، اور آپ نے بڑے مزے سے ایک پرسکون سے ماحول میں غسل کر لیا۔ اور پھر اس کے علاوہ آپ نے دیکھا اب آپ کو بھوک لگ رہی ہے اور آپ ناشتہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو سوچ بھی نہیں سکتے کہ آج کیا کھائیں گے، ان کے پاس خوراک ہی نہیں ہوتی، لیکن اللہ نے آپ پہ اتنا کرم کر رکھا ہے کہ آپ جو بھی آپ کی امی، بہن، مسز، جو بھی، یا ایون آپ کی کوئی سرونٹ ہے، اس کو آپ کہیں گے کہ ناشتہ بنا دو، تو آپ کے پاس آپشن ہوں گے، وہ پوچھیں گے آپ نے کیا کھانا ہے ناشتے میں۔ تو کہیں تو کسی کو ایک نوالا روٹی نصیب نہیں ہو رہی، اتنے اس کے اوپر آزمائش ہے، مشکلات ہیں، اور کہیں آپ سے آپشن پوچھے جا رہے ہیں، تو یقیناً آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اچھا، اب آپ نے ناشتہ کر لیا، اب آپ نے یا تو اسکول جانا ہے، یا کالج جانا ہے، یا آفس جانا ہے، تو یا اپنے بزنس کے لیے آپ نے نکلنا ہے، جو بھی سچویشن ہے، آپ جس بھی ایج گروپ میں ہیں، اور اب آپ نے وہاں جانا ہے، اور اس جگہ تک پہنچنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کو کوئی کنونس چاہیے۔ اچھا، کنونس سے پہلے اگر ہم آپ کو دیکھیں، آپ اگر جسمانی طور پہ کوئی معذوری نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، اور آپ چل کے جا سکتے ہیں، ڈرائیو کر کے جا سکتے ہیں، دوڑ کے جا سکتے ہیں، تو یہ بھی تو دیکھیں اللہ نے آپ کو فزیکلی کتنا فٹ کیا ہے، اس پہ بھی آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ یعنی اگر ہم شکر ادا کرنے والے بنے تو کوئی ایک چیز نہیں، ایک ایک لمحے میں، ایک ایک چیز میں ہمیں اللہ کی نعمتیں اور عنایتیں نظر آنے لگ پڑتی ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم لوگوں کو وہ نگاہ رکھنی ہوگی کہ جس سے ہمیں اللہ کی جو نعمتیں ہیں، اس کی جو عنایتیں ہیں وہ نظر آ رہی ہوں، اور اس پہ ہم سچے دل سے اللہ کا شکریہ ادا کر رہی ہوں۔ تو شکریہ ادا کرنا بہت ضروری ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب آپ میرا شکریہ ادا کریں گے تو میں آپ کے لیے اپنی نعمتوں اور رحمتوں میں اور اضافہ کروں گا۔ میں نے خود بھی اس چیز کو پرسنلی آزمایا ہے۔ میں
अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ, उसने मुझ पे 100 तरह की रहमतें और करम किया हुआ है। और ये पक्की बात है, आप यकीन करें कि जब आपके पास किसी चीज़ की कमी है ना, तो आप फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करें, बजाय शिकायतें करने की कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। जो बंदा शिकायतें करता है उससे अल्लाह जी खुश नहीं होते, और जो बंदा कुछ ना होने के बावजूद कहता है ठीक है यार, जिस हाल में रखा है अल्लाह ने अच्छा रखा है, शुक्र है अल्लाह का, तो उस पर फिर अल्लाह बड़ा खुश होता है। अल्लाह कहता है देखो ये मेरी आजमाइश थी, मैंने इस पर आजमाइश रखी थी कि ये क्या करेगा, ये क्या कहेगा। और फिर अगर आप शुक्र कहते हैं तो अल्लाह जी आपको अपनी नेमतों के ख़जानों से माला माल कर देते हैं। अब जब हम बात कर रहे थे कि इसी तरह आपने अगर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या अपने ऑफिस जाना है, तो आप चल के जा रहे हैं तो आपकी जिस्मानी हालत ठीक है तभी तो आप जा पा रहे हैं, या अगर आप अपनी गाड़ी या अपनी कन्वेंस वगैरह में जा रहे हैं तो आपको अल्लाह ने इतनी नेमतें दे रखी हैं कि आपकी अपनी ज़ाती कोई जो गाड़ी या साइकिल या आपकी अपनी कोई कन्वेंस है जिस पे आप जा रहे हैं। फिर आप जिस ऑफिस में जा रहे हैं वहाँ का एनवायरनमेंट, आपकी नौकरी लगी है भाई, कितने ही लोग हैं जो बेरोज़गार बैठे हैं, जो इस चीज़ का इंतज़ार करें काश कि हमें कहीं कोई काम पे रख ले हमें। उनके पास बड़ी बड़ी डिग्रीज भी हैं, उनके पास बहुत सारा नॉलेज भी है, उनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है, लेकिन उसके पास रोज़गार का मौक़ा नहीं है। रोज़गार के मौक़े अगर नहीं हैं तो फिर क्या फ़ायदा, फिर मतलब वो उदास बैठा होगा। तो अगर आपके पास रोज़गार के मौक़े भी हैं और ये सब चीज़ें जो अब हम गिनते आ रहे हैं, तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। अच्छा, अब दोपहर हो गई है, आपको भूख लगी है, आपने खाना खाना है। सुबह भी जिसने खिलाया था वही अगर आपको दोपहर को भी खिलाने के लिए आइडियल चीज़ें दे देता है, और आप समझ रहे हैं जी मेरा कमाल है, मैंने पैसे लगाए हैं, मैंने अच्छी फूड ऑर्डर किया था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका कुछ भी इसमें कमाल नहीं है। ये सब कमाल उस अल्लाह का है कि जिसने आपको रिज़्क अता किया। अब ये एक लंबी लिस्ट है ना, अगर आप सारे दिन का ही जायज़ा ले लें तो आप यकीन करेंगे कि आप शुक्र करते नहीं थकेंगे, एक के बाद एक नेमत आपके सामने नज़र आती जाएगी। ये बड़ा अच्छा। मैं आपको इस हवाले से एक वाक़या सुनाती हूँ। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि मूसा अलैहिस्सलाम जो कि कलीमुल्लाह भी कहलाए जाते हैं, आप अल्लाह ताला से बात करने, मुलाकात करने के लिए एक दफ़ा जा रहे थे कि जाते जाते आपका गुज़र एक सहरा से हुआ, और वहाँ पे आपने एक शख्स को नीम बरहना हालत में ख़ुद को रेत में छुपाए हुए उसने रखा हुआ था, और आपने उसको देखा तो उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि मूसा तुम कहाँ जा रहे हो, अल्लाह से बातचीत करने जा रहे हो। तो हज़रत मूसा ने कहा कि हाँ मैं अल्लाह से बात करने जा रहा हूँ। तो उसने कहा तो अल्लाह को मेरी भी बात पहुँचा देना। तो हज़रत मूसा ने कहा कि हाँ ज़रूर, बताओ कि आप क्या कहना चाहते हैं। उसने कहा कि मैं इतने दिनों से भूखा हूँ, बुरा हाल है, खाने पीने को कुछ है ही नहीं है, और ये देखो मेरे पास लिबास नहीं है, मेरे पास कुछ है ही नहीं है, इतनी मुश्किल हालात से गुज़र रहा हूँ। तो तुम खुदा हो और तुम मुझे अपना बंदा कहते हो, तो फिर मेरे ऊपर रहम क्यों नहीं करते। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस शख्स की बात सुनने के बाद अपना सफ़र जारी रखा, और आगे जाते जाते उनकी मुलाकात एक और शख्स से हुई, और उसने भी वही सवाल किया कि मूसा क्या तुम अल्लाह से बातचीत करने जा रहे हो। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाँ मैं अल्लाह से बातचीत करने जा रहा हूँ। तो उसने कहा कि मेरा एक पैगाम अल्लाह तक पहुँचा दोगे क्या। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाँ ज़रूर, क्या कहना चाहते हो। उसने कहा कि अल्लाह ताला से कहो कि मेरे ऊपर आपने इतनी रहमतें कर दी हैं, इतनी नेमतें, इतनी नवाजिशें मुझ पे आपने कर दी हैं, इतनी रिज़्क की बरकत कर दी है, मैं आपका लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन प्लीज़ अब थोड़ा कम कर दें, मुझसे इतना संभाला नहीं जा रहा, तो मैं अब इतना ज़्यादा माल दौलत और नेमतें और आसाइशें संभाल नहीं पा रहा। तो अल्लाह से कहें कि अब मेरे ऊपर से ये थोड़ी सी कम कर देना, मैं आपने जो कुछ दे दिया मैं उसका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन बस अब ये मुझसे थोड़ी कम कर दें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रवाना हो गए उसका पैगाम लेकर। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन दोनों अशख़ास के पैगामात को अल्लाह ताला के सामने रखा, तो अल्लाह ताला ने जवाबन यही कहा कि जो बंदा रेत में ख़ुद को छुपाए हुए है उसको बोलो कि अल्लाह का शुक्र अदा किया करे। और जो दूसरा शख्स था उसके लिए भी अल्लाह ताला ने ये कहा कि मूसा मैं कैसे उसके ऊपर अपनी नेमतों, रहमतों और बरकतों के नज़ूल को ख़त्म कर सकता हूँ। वो हर वक्त शुक्र अदा करता है, और मेरा वादा है कि जो शुक्र अदा करेगा मैं उसके लिए अपनी नेमतों के दरवाज़े और खोलूँगा, तो मैं अपने वादे के ख़िलाफ़ नहीं कर सकता। तो वो उसको बोलो कि तुम शुक्र अदा करना बंद कर दो तो मैं अनायतें बंद कर दूँगा। तो खैर ये पैगाम लेकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वापस आते हैं, और फिर रास्ते में बैठा वही रेत में दबा शख्स उनको मिलता है, और वो कहता है हाँ बताओ ना तुम्हारे अल्लाह ने क्या जवाब दिया। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो का तू वही मैसेज दे दिया उस शख्स को कि अल्लाह कह रहा है कि शुक्र अदा किया करो। तो वो आगे से बंदा कहता है शुक्र अदा करूँ, किस चीज़ का शुक्र।
पेट मेरा भूखा है, जिस्म पे मेरे कपड़े नहीं हैं और मेरे कोई हालात नहीं है, मैं बीमार रहता हूँ, हर तरह की महरूमी मेरे पास है, मैं किस चीज़ पे शुक्र अदा करूँ। अब इस चीज़ को गौर से देखिएगा नाजरीन कि इस कंडीशन में जब अल्लाह ने उसको कहा कि शुक्र अदा करो, तो मेरे और आपके जहन में भी ये बात आती होगी ना कि किस चीज़ पे शुक्र, लेकिन अगर देखा जाए तो शुक्र अदा करने के लिए उसके पास अभी भी बहुत सी चीज़ें हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उसको ये पैगाम दे के थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो वही शख्स दोबारा जो दूसरे नंबर पे उनसे मुलाकात हुई थी जिस शख्स की, वो खड़ा है और इंतज़ार में है कि अल्लाह ने क्या जवाब दिया होगा, क्या मूसा ने मेरा पैगाम पहुँचाया भी है कि नहीं। तो खैर वो शख्स दौड़ता हुआ आया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से बड़ी बेचैनी से ये बात पूछी कि हाँ बताओ ना मूसा, आपकी अल्लाह से बात हुई होगी, तो अल्लाह ने क्या जवाब दिया। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस शख्स को कहा कि अल्लाह फरमा रहे हैं कि तुम शुक्र अदा करना बंद कर दो, मैं नेमतों का नज़ूल तुम पे बंद कर दूंगा। अब तुम शुक्र इतना अदा करते हो तो मैं अपने वादे से ख़िलाफ़ नहीं कर सकता, लिहाजा मैं तुम पे नेमतों का नज़ूल बंद नहीं कर सकता। इस वाक़े से नाज़रीन अगर आप देखें तो हमें बहुत ज़बरदस्त मैसेज मिलता है कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है ना, जैसे उस शख्स के पास कुछ नहीं था लेकिन उसे रोज़ एक नई सांस मिलती थी, उसे रोज़ एक नई ज़िंदगी मिलती थी। वो रोज़ जब वहाँ पे वो बैठा होता था, वो उस कंडीशन में अगर अल्लाह का शुक्र अदा करता कि या अल्लाह तूने फिर एक नई ज़िंदगी दी है, तूने फिर जीने का मौका दिया है, तूने फिर अच्छा करने का मौका दिया है, वो बजाय ये सोचने के वो ये गिले करता रहा अल्लाह ने मुझे दिया क्या, मेरा पेट भूखा है, मेरा बदन नंगा है, मुझे लिबास नहीं दिया, मुझे ये नहीं दिया। ऐसी नाशुक्री बातें करने से अल्लाह ने उसे महरूमियों में ही रखा। और जिस शख्स का दूसरे शख्स का देखें कि वो अल्लाह का शुक्र अदा करने वाला शख्स था, शुक्र बजा लाने वाला शख्स था, उसके पास अल्लाह की नेमतों की इतनी भरमार हो गई कि आखिर वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि बस कर दें, अब मुझसे संभालने नहीं हो रहा। आप सबके लिए और मेरे लिए मैसेज यही है कि अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करें। वो नेमतें माली तौर पे हों, वो नेमतें आपकी सेहत के सूरत में हों, वो नेमतें आपके रिश्तों की सूरत में हों, या जिस सूरत में भी वो नेमतें आपके पास हैं उन्हें पहचानिए और अल्लाह का शुक्र अदा करें। और ख़ास तौर पे अगर आपके माँ बाप ज़िंदा हैं तो यकीन करें ये इतनी बड़ी दौलत है, इतनी बड़ी दौलत है कि आप इसका नेमुल बदल नहीं ला सकते। मेरे मम्मी अब्बू अब इस दुनिया पे नहीं हैं, मैं उन्हें बहुत मिस करती हूँ। और मैं कहती हूँ कि जिनके माँ बाप हैं खुदारा कदर कीजिए, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, माँ बाप की खिदमत कीजिए और उनसे जितनी दुआएं समेट सकते हैं समेटें। और यही नहीं, अगर आप सेहतमंद हैं तो इस सेहत की कदर करें, अगर आप दौलतमंद हैं तो उस दौलत की कदर करें, अगर आप साहिबे औलाद हैं तो उस औलाद की कदर करें। और जो जो नेमतें अल्लाह ने आपको दे रखी हैं उनको देखिए, पहचानिए और अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलती हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।